सो हाय दोस्तों, मेरा नाम अंजन है। तो मैं आपको कुछ माइंडसेट के बारे में बताने आया हूँ, लाइक हाउ टू सेट आवर माइंड इन ए प्रॉपर वे टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल इन आवर लाइफ दैट वी आर इंटरेस्टेड अपॉन, दैट यू आर इंटरेस्टेड अपॉन। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं आफ्टर 10th कि साइंस कर ले, सब कोई बोलते हैं साइंस कर ले, बट आजकल कॉमर्स भी मतलब चॉइस कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं लेने के लिए, आर्ट्स भी चूज़ कर रहे हैं लेने के लिए। बट why it is a very means uncommon thing to take arts and commerce? It is not that good to take arts and commerce, right? साइंस लो तो अच्छा स्टूडेंट, साइंस नहीं लो तो बुरा स्टूडेंट, दैट डजंट मीन। फर्स्ट मैसेज तो ये है। बट माइंडसेट, लेट मी कम टू द माइंडसेट पार्ट। सो what are the basic points that you have to learn to keep your mindset in a adequate, not adequate, in a proper way to achieve anything in life? Anything you want to achieve, anything, if you want to become, let me say anything, it just need manifestation and consistency and a proper mindset to become anything. तो फर्स्ट की पॉइंट, पहले तो चूज़ करना चाहिए कि कौन सा ट्रैक पे जाना है। अगर आप 10th के बाद हो, आप देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है। साइंस अच्छा लग रहा है, साइंस का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है, व्हाट यू रियली एन्जॉय टू डू अबाउट साइंस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक कॉमर्स एंड यू आर लिसनिंग टू अदर्स दैट no, science is good, after science you can have more alternatives to go upon. So it doesn't matter what others says, what the society says, it will always say, but the thing matter is आपका इंटरेस्ट क्या है और आप कितने कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहने का। और द मेन गेम चेंजिंग पार्ट ऑफ लाइफ इज़ कंसिस्टेंसी। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट अगेन, चूज़ योर ट्रैक दैट यू आर इंटरेस्टेड अपॉन। अगर आप 10th में हो देन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, 12th में हो, ग्रेजुएशन साइंस में किया है तो इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, मेडिकल है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। फाइंड दैट अल्टरनेटिव्स दैट यू कैन गो अपॉन एंड फाइंड योर इंटरेस्ट दैट यू आर interested in that particular alternative or options to go upon. Okay, now next, once you find that all that things that you are interested upon this track and you want to go on that track, then you can do a daily chart. Yeah, it is not a joke at all, because if you want to go and if you want to pursue something, that you have to follow a daily chart. Everyone has a daily routine. Someone go to work, someone wake up and some go to office. Everyone has a daily routine. Even if you think that you don't have a daily routine, then also you have a daily routine. If you don't do anything, अगर आप सो के उठते हो, ब्रश करते हो, ये अगर अपना काम ख़त्म करते हो, उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी पबजी खेलते हो, देन ऑल्सो यू हैव ए डेली रूटीन दैट आप सो के उठ रहे हो, ब्रेकफास्ट करके फिर से पबजी खेलना स्टार्ट कर दे रहे हो। बट that doesn't mean you cannot have a, means you can have a particular routine about that thing you want to pursue in life. First confirm that, make a daily chart, and first and foremost rule of the daily chart, stop wasting your time, utilize it, either it is in entertainment or in learning skills. In these days there are many opportunities and many ways to develop your skills. So I refer that you should develop your skills. There are many courses out there that you can refer to. So now coming to the second point again, that make a daily routine, make a daily chart and try to follow it and stop wasting your time. अगर आप वेस्ट कर रहे हो, हर दिन उसको लिखो कि मैं आज इतना घंटा वेस्ट किया। ठीक है, कोई बात नहीं, 7 दिन लिखो, 8वें दिन पे आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप कितना वेस्ट कर रहे हो। अगर आप एक दिन में 6 घंटा से 7 घंटा भी आप वेस्ट कर रहे हो, देन यू इन 10 days यू आर वेस्टिंग 70 hours, दैट इज़ 3 days ऑफ 10 days यू आर वेस्टिंग, है ना। ऑलमोस्ट 8 to 10 hours हर कोई सोता है। तो अगर आप एक रेशियो बना के देखोगे तो उसमें से आप 10 days में से 2 दिन से 3 दिन भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। देन मेक ए डेली चार्ट एंड properly follow that chart. Even if you are doing an exercise,
even if you are doing an routine yoga, anything, cooking, anything. Then coming to the third point, just a second. So yeah, sorry. So if you are preparing your daily goal, and you need to be consistent on that, no matter where you are, in your home, in your relatives home, no matter where you are, try to do at least in a smaller amount of time. अगर आप हर दिन उसको कंटिन्यू कर रहे हो, हर दिन 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, बट आप अभी कहीं पे चले गए, उसको कोशिश करो कि 2 से 3 घंटा एटलीस्ट पढ़ लें कहीं पे भी। आजकल मोबाइल में हर कुछ ऐप इंस्टॉल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, मोबाइल में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक दे सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो ट्राई टू डोंट मिस इट आउट, ओके। अगर एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो ट्राई टू कीप इट अप, मीन्स कीप इट इन अ ट्रैक एंड ट्राई टू डोंट मिस इट आउट, ओके। द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बी कंसिस्टेंट। जो भी हो जाए, बी कंसिस्टेंट। मिस बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप एक दिन में मिस करते हो, दूसरा दिन आपको फिर से वही मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि आप फिर से एक बार ट्राई करूँ, मतलब फिर से एक बार न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मिस नहीं करना है, थोड़ा भी करो लेकिन करना है। एंड द फिफ्थ पार्ट इज़ मैनिफेस्टेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मैनिफेस्टेशन मीन्स हर दिन आपको उस जगह पे देखना है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। एंड नेवर रन आउट फॉर मनी माई फ्रेंड, नेवर नेवर। अगर आप पैसे के लिए भागोगे तो आप कभी उसके पीछे पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पैसा अनलिमिटेड होने से भी वो कम लगेगा। एंड ह्यूमन टेंडेंसी ही यही है कि जितना भी होने से उसको कम ही लगता है। तो मैनिफेस्ट करो, कौन सा पोजीशन में पहुंचना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, और हर दिन मैनिफेस्ट करो। अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानते हो, देन लेट मी टेल यू, मैनिफेस्टेशन इज़ ए फीलिंग, इज़ ए एब्स्ट्रैक्ट थिंग दैट यू सी yourself in that particular position you want to be after 10 years or 15 years, or after 2 years. After 2 years you want to clear IIT, after 2 years you want to get into IIM. Then manifest yourself daily that you will be getting IIM, and practice in that way so that it will help you to achieve that thing. So take care. And आजकल तो कोरोना वायरस के लिए बहुत सारा, क्या बोलूँ इस एपिडेमिक के बारे में। एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स। टेक केयर, बाय बाय।